हरे कृष्णा। सो आज से हम हमारे भगवद गीता के 16वें अध्याय द डेमोनियक एंड डिवाइन नेचर्स पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से पुरुषोत्तम योग भगवान ने अपनी महत्ता, जीवों के दो स्वभाव और किस प्रकार से शुद्ध प्रेमा भक्ति से एक जीव मेरे पास आ सकता है, इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की। तो जैसे भगवान ने इस पूरे भौतिक संसार की कल्पना एक अश्वत्थ वृक्ष से की थी, he had compared this entire material existence to a banyan tree and it has many variegated branches and the desires for enjoyment in this material world propelled by the affirmations of Vedic literatures, they tend to expand the existence of a jiva in this material world. So इस भौतिक जगत में जीव की इच्छाएं, उसके भोग, ये उसके इस जीवन में या अगले जीवन में उसको दुख देने का और सुख देने का कारण बनती हैं. So the material world is compared to a tree and Krishna introduces to us two more trees in this chapter. One taking us on the right side and the other taking us to the wrong side. So wherever we are, हम जहाँ कहीं पर भी हैं, depending on the choices that we make, हम जिस प्रकार से हमारे जीवन में चयन करते हैं चीज़ों का, उसके हिसाब से या तो हम यहाँ से बाहर जाते जाएंगे या इसके अंदर और ज़्यादा गंभीर रूप से लिपटते जाएंगे. So the divine nature is the path that takes us back or towards de-entanglement. And the demoniac nature is the path that takes us more towards its engulfment. So Krishna says in the first verse of this chapter, Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Satvasham Shuddhi Jnana Yoga Vivasthiti Danam Damascha Yajñascha Swadhyayastapa Arjavam. So the Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, yes, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. तो 3 श्लोकों में भगवान हमें दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं. So दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति. So one way is to live like demigods or gods, abiding by the rules and principles and regulations that are given in scriptures and the Supreme Personality of Godhead. And the second way is demoniac, wherein one completely disregards or shows disrespect to the way the nature has been working and it tells us to regulate oneself. So भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति का सबसे प्रथम गुण धर्म क्या है? What is the first characteristic? Abhayam. Because Krishna is the Supreme Personality of Godhead and Jiva knows this very beautifully. हमने देखा 15वें अध्याय के आखिरी 2-3 श्लोकों में हमने यही देखा था, भगवान ने यही कहा था कि सर्वभावेन भारत, वो मेरा भजन करता है सर्वभाव से. सो क्योंकि वो भगवान का सर्वभाव से भजन कर रहा है, there is abhaya, there is fearlessness. वो मृत्यु से या इस जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से उसे आशंक नहीं है, उससे डरता नहीं है. इसीलिए सत्व संशुद्धि, he is completely endeavoring to purify his existence on the level of body, mind, intelligence and ego. शरीर के स्तर पर नियमों का पालन करके, मन के स्तर पर भगवान का नाम जप करके, बुद्धि के स्तर पर शास्त्रों का अध्ययन करके और अहंकार के स्तर पर भक्तों के संग में रहकर भक्ति करके वह सत्व संशुद्धि कर रहा है. So, following regulative principles, chanting the holy names of the Lord, reading scriptures and staying in association of devotees, this cumulatively quantify sattva samshuddhi. Krishna says, Shuchi, sattva samshuddhir, jnana and yoga. Jnana means knowledge about material world, spiritual world and the controller of both. भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और उन दोनों के स्वामी कौन है, इसके बारे में जानकारी यह है ज्ञान.
और जब उनके स्वामी कौन है, भगवान कहते हैं मैं हूं, तो उनसे तादात्म्य, उनसे अपना संबंध बनाने की प्रक्रिया वो है योग। सो नॉलेज टेल्स अस हु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज, एंड योग इज ट्राइंग एक्टिवली टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दानम, जो कुछ भी अपने जीवन में वो पाता है, चाहे द्रव्य हो, चाहे अनाज हो, कुछ भी हो, कुछ पोर्शन वो उसका दान करता है, क्योंकि एनी एंडेवर एंड एवरी एंडेवर आर नॉट प्योर। हर एक कार्य में कहीं ना कहीं तो अशुद्धताएं आती ही आती हैं। कर्मों की श्रृंखलाओं में अशुद्धता ये नेचुरल है, नॉर्मल है। जैसे 5 लीटर दूध में आपने 5 ml जहर मिला दिया, तो कहीं ना कहीं पूरा दूध अशुद्ध हो गया। अरे मैंने ऊपर से ही डाला तो नीचे का दूध ले लो, अरे ऐसा नहीं होता। सो जैसे ही वो 5 ml जहर क्यों नहीं चला गया 5 लीटर दूध में, वो दूध अशुद्ध हो गया। वैसे ही चाहे कितने ही अच्छे हमारे इंटेंशंस हों, कितने ही अच्छे हमारे एक्शंस हों, इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली हम विपरीत परिस्थितियों को, पाप को अपने जीवन में लाते ही लाते हैं, अननोइंगली। तो इसीलिए सारी चीजों को शुद्ध करने का एक आसान मार्ग है दान। सो दान करता है वो व्यक्ति। दमः, सो दमः मीन्स माइंड कंट्रोल, एंड यज्ञ, कंट्रोलिंग वंस माइंड एंड बॉडी, ही एंगेजेस देम इन लॉर्ड्स सर्विस। वो भगवान की सेवा में उन्हें संलग्न करता है। कैसे संलग्न करना है अपने मन और शरीर को भगवान की सेवा में, उसके लिए स्वाध्याय। वो अपने जीवन में शास्त्रों का, भगवद गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद इत्यादि का पठन करता है। तपस्या करता है, जीवन में अत्यधिक भोग प्राप्त करने की लालसा नहीं करता। और आर्जवम, ही लिव्स वेरी सिंपली, साधारण तरीके से वो अपना जीवन जीता है। सो व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी मीन्स नो ड्यूप्लिसिटी। जो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाना, ये ड्यूप्लिसिटी है, छलावा है, हिपोक्रेसी। जो अंदर है वो बाहर है, तो सिंप्लिसिटी है। सो इस तरीके से भगवान पहले श्लोक में ये गुण बताते हैं दैवी संपत्ति के, और 2 श्लोकों में, कल और परसों, हम यही दैवी संपत्ति, वी विल डिस्कस इट इन मच फर्दर गुड डिटेल। Today we have the link of the quiz on 15th chapter being posted. It will be there active for 4 days. Make sure you participate. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama